Now, welcoming class 9 students. Today class is very important for you, and I can say that the thing that we are going to discuss in this class, I'll explain and solve, is sure short questions for your final examinations. And these are the sure short question is from construction in the crash course. Today we'll see the construction. And this construction, there are only 4 types of constructions in the syllabus of class 9. And these all 4 type of constructions are based upon isosceles triangle. So the basic property of the isosceles triangle, which has been used in the almost all the construction, is that the angle bisector of the vertex angle also divide or bisect the base. जैसे मान लीजिए suppose this is your isosceles triangle, and if you bisect the base, which means the opposite angle is also divided into 2 equal parts. Here A, B, C is an isosceles triangle. If you bisect the base, at the same time the vertex angle is also bisected. So the question number 1 of your NCERT book, give me NCERT book. Here you have given to draw a construction in which you have given the sum of 2 sides. Question number 1. You have to draw a triangle ABC. BC is equal to 7 centimeter. Angle B is equal to 75 degree. And you have given AB plus AC is equal to 13 centimeter. Okay. Now please take out your scale and compass. Draw BC 7 centimeter. Draw BC 7 centimeter. Okay. At B, you have to draw an angle of 75 degrees. You can draw it with the help of compass or with the help of protractor. So I will take the help of protractor. Protractor से आप 75 डिग्री का एंगल क्या बनाएंगे? Okay. Now see here. After that, you have given AB plus AC is equal to 13 centimeter. You have drawn up to this step. You have to draw here. Yes, sir. You have to draw here. Yes, sir. Okay. Now take a radius of 13 centimeter in your compass. इसको 13 centimeter का एक radius लो. स्केल पर आप 13 centimeter का radius लीजिए. ले लिया? Now, put the your metal point at B and the 13 centimeter mark will cut here. And name this one as D. ये PD कितना हो गया बच्चों हमारा? 13 सेंटीमीटर. अब आप DC को ज्वाइन कीजिए. क्या ज्वाइन DC ज्वाइन कर लिया? अब देखो, अब ध्यान से देखिए, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. मैंने क्या बताया था? When you draw the perpendicular bisector of the base of isosceles triangle, it also bisect the vertex angle. अब perpendicular bisector ड्रॉ करने का क्या मेथड है? What is the method to draw the perpendicular bisector of any line segment? क्या करना है? ध्यान से देखिए बोर्ड पर. You have to take a radius which is more than half of the segment. More than half of the segment. ले लिया आपको? अब इसको छोटा बड़ा नहीं करना है. एक बार डिसाइड करने के बाद
draw an arc both sides of the line segment from one point. फिर उसी को लाइन बढ़ा रखकर keep it at D. Then both will intersect at two different points. Join this one with dotted lines. जिस पॉइंट पर ये कटेगा वहां पर क्या मान लेना आपको? ए मान लेना, ठीक है ना? अब यहां देखिए, ए से सी को ज्वाइन कर दो, ए से सी को ज्वाइन कर दो. So triangle ABC is the required triangle. अब मैं इसको प्रूव करके दिखलाता हूँ आपको. CAD is an isosceles triangle. क्योंकि हमने क्या किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. अब यहाँ देखिए, AB plus AD, यहाँ पर लिखेगा ट्रायंगल BAC is isosceles triangle. AD is equal to AC. AD is equal to AC. ये हो गया. अब यहाँ देखिए, AB plus AD कितना है हमारा? AB plus AD is equal to 13. Now AD can be replaced by AC. क्या हो जाएगा? AB plus AC is equal to 13. यही ना आपको देना था. कंडीशन में क्या हमको प्रूव करना बनाना था? AB plus AC. Angle A is 75 degree and BC is equal to 7 centimeter. प्रूव हो गया? ठीक है ना? अब हम आपको डायरेक्ट पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक. 2 और 3 मैं एक साथ पढ़ाऊंगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप. Construct a triangle XYZ in which angle Y is equal to 30 degree, angle Z is equal to 90 degree, XY plus YZ plus ZX is equal to 11 centimeter. हो गया? अब now please draw a line segment of 11 centimeter. 11 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लीजिए. इसका नेम दे दीजिए आप A and B. प्लीज डू अलोंग विथ मी. मेरे साथ नहीं बनाओगे तो बाद में आपको समझ नहीं आएगा कि हमको क्या करना है. 11 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया. नाउ टेक प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर लीजिए. अब यहाँ देखिए, एंगल Y कितना है हमारा? 30 डिग्री का हाफ कितना हुआ? 15 डिग्री. मेक एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एट A. मेक एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एट A. हो गया? ठीक है. एंगल Z कितना है हमारा? 90 का हाफ कितना हुआ? 45. मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट B. 45 डिग्री एट B विथ प्रोट्रैक्टर. सपोज ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो जहां पर ये कनेक्ट हो रहा है उसको आप बढ़ा दीजिए. ठीक है. The point at which this 15 degree angle and 45 degree meet, name this one as X. ऊपर क्या लिखना है? X लिखो. ठीक है. Now take protractor in your hand. अब protractor ले लो. कंपास. Sorry, compass. अब क्या करना है बच्चों? एक ही काम करना है XA के साथ और XB के साथ. You have to draw the perpendicular bisector of XA as well as XB. पहले हम XA का ड्रॉ करते थे. मोर देन हाफ ले दिया हम. फिर ये एक बार ऊपर ड्रॉ किया और एक बार नीचे ड्रॉ किया. फिर इसको नहीं डिस्टर्ब करना है.
फिर यहां से नीचे ड्रॉ करेंगे और उसी से ऊपर ड्रॉ करेंगे। ओके, अब इसको डॉटेड लाइन से मिलाइए आप। ठीक है, द पॉइंट एट विच द डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट एट ए बी, यहां पर आप लिखोगे y, यहां पर क्या लिखोगे y। जहां पर वो ए बी को कट कर रहा है वहां पर क्या लिखना है y। डॉटेड लाइन में कटेगा ना, जॉइन एक्स वाई, जॉइन ओके। फिर वही काम वो किसके साथ करना है बच्चों, एक्स बी के साथ। वेरी गुड, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स बी। मोर देन हाफ लेकर ऊपर नीचे कट कर दो। अब देखो इसको फिर डॉटेड लाइन से मिलाओ। अगेन दिस डॉटेड लाइन विल इंटरसेक्ट ए बी एट ए पॉइंट, यहां पर क्या लिखना है आपको z लिखना है, जॉइन एक्स जेड। So this is your required triangle। अब देखिए मैं इसको प्रूफ करके बताता हूं बच्चों, ध्यान से देखो जो कंडीशन है उसको कैसे प्रूफ होगा। ए वाई एक्स ट्राइंगल, ए वाई एक्स इज आइसोसेलेस। इसमें क्या होगा, ए वाई इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू वाई एक्स या एक्स वाई। फिर ट्राइंगल बी जेड एक्स क्या हो गया हमारा, ट्राइंगल बी जेड एक्स इज आइसोसेलेस। इसमें क्या हो जाएगा, बी जेड इज इक्वल टू जेड एक्स, बी जेड इज इक्वल टू जेड एक्स। अब देखिए ए वाई प्लस वाई जेड, ए वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड बी, ये कितना हमारा 11। इस ए वाई की जगह क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड, जेड बी की जगह क्या लिखेंगे, ये आ गया हमारा कंडीशन। अब देखिए ये दोनों एंगल कैसे आएगा, आपने ट्रायंगल में पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ opposite angles, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ay इज इक्वल टू yx, ये 15 है, ये कितना हो जाएगा हमारा 15। तो x y z जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपने से कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हो गया बस, आपने प्रूव किया ये आइसोसेलेस है। दिस वन इज 45, ये भी कितना हो जाएगा 45। तो 45 और 45 कितना हो गया, हो गया हाँ। तो जो भी कंडीशन था हमारा फुलफिल हो गया बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन 2 और 3 मैं एक साथ बताऊंगा इसमें आपको, ठीक है। Simultaneously I will explain and please look at the board. In question number 2 you have to draw a triangle ABC. Draw a triangle ABC where BC is given 8 centimeter, angle B is 45 degree, and here you have given AB minus AC is equal to 3.5. Question number 3, you have draw a triangle PQR. Angle Q you have given 60 degree, QR is equal to 6 centimeter, and PR minus PQ is equal to 2 centimeter. देखो ध्यान से देखिए, मैं देखना चाहता हूं कौन बच्चा इसमें सबसे स्मार्ट है, कौन सा स्टूडेंट सबसे स्मार्ट है, बॉय और गर्ल। These 2 questions we have given. Okay. Now there are a lot of similarities in both the questions. Here we have given the value of base 8 centimeter, value of base 6 centimeter. One base angle is given
One base angle is given 60 degree. Now my question, what is the difference between these two triangles? सर पहले वाले में सर ए बी माइनस ए सी किया सर, कभी भी ए बी को ए सी से मतलब इसमें सॉल्व किया जाता है, इसमें अपोजिट दिया तो सर अगर हम करते तो पहले वाला नेगेटिव में आ जाएगा तो उसको नीचे की तरफ से। क्या बेसिक डिफरेंस है? बेसिक, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? आप ध्यान से देखोगे दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। इसमें क्या है, द साइड ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन द अपोजिट साइड, क्योंकि जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री उसका ए बी क्या है, साइड है। अब देख रहे हैं ना, उसका ए बी क्या है, हमारा साइड है, और वो क्या है, बड़ा है। एंगल का साइड इसमें बड़ा है, देख रहे हैं ना। इसमें एंगल का जो साइड पी क्यू है वो छोटा है, यही एक डिफरेंस है, इसी को पकड़ना है हमको। जिसमें एंगल का साइड बड़ा है उसमें इंटरसेक्शन ऊपर कटेगा, जिसमें एंगल के सामने, देख रहे हैं ना, ये सामने का साइड बड़ा है ना, एंगल के सामने, एंगल हिंदी में लिख रहा हूं मैं, एंगल के सामने, सामने वर्ड में न जो वर्ड है वो आपके लिए ट्रिक है, ठीक है ना। न से क्या याद रखना है हमको, नीचे, न से क्या रखना है, नीचे। इसमें एंगल के सामने का साइड बड़ा रहेगा, उसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, नीचे कटेगा, दूसरा अपने आप ऊपर कटेगा। नाउ गेट रेडी, दोनों हम लोग एक साथ बनाएंगे बच्चों। ये टेक बेस 8 सेंटीमीटर BC, here you take a base QR of 6 centimeter. Okay? Now, take protractor in your hand. Here you draw an angle of 45 degree. Draw an angle of 45 degree, and here you draw an angle of, यह कितना बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री। अब यहाँ 45 डिग्री हम बना दिए। अब इसमें हमने डिसाइड किया था इंटरसेक्शन कहाँ कटेगा बच्चों, नीचे कटेगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम नीचे की ओर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब देखो, नाउ द थर्ड स्टेप, इसमें डिफरेंस कितना दिया है, 3.5। आप 3.5 ले लीजिए इसमें रेडियस, और यहां से 3.5 कट कर दीजिए ऊपर। फिर इसमें कितना लेना हमको, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर ले लीजिए आप, और यहां नीचे कट कर दीजिए, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहां लिख दीजिए D, और यहां नीचे ज्वाइन कर दीजिए, और यहां भी लिख दीजिए आप D। हो गया, एक ही स्टेप है दोनों में। इसके बाद वाला भी में भी दोनों में एक ही स्टेप है। यहां तक कर लिए बच्चों। अब देखो, इस फिगर में, पहले वाले फिगर में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम CD का याद करना है, BC का नहीं, किसका, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। 1 2, फिर यहां से 1 2, हो गया। मैंने BC का नहीं ड्रॉ किया है बच्चों, किसका ड्रॉ किया है, CD का। अब देखो, यहां इसे क्या करोगे, डॉटेड लाइन से आप कनेक्ट करोगे। जिस पॉइंट पर ये BD को कनेक्ट करेगा यहां पर, ठीक है ना, वहां मान लोगे आप A, और A से C को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखो, मैं इसको प्रूव करता हूं। AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ना, तो
एडीसी क्या हो गया हमारा? एडीसी कैसा ट्रायंगल हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल एडीसी इज आइसोसेलेस। इसमें क्या हो जाएगा? एडी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू एडी। अब एडी में हम बीडी ज्वाइन कर दिए, एडी प्लस बीडी इज इक्वल टू, चलो अब यहां लिखेंगे पहले हम AB इज इक्वल टू AD प्लस BD। हो गया? AD की जगह क्या लिखेंगे? AC। BD की जगह क्या लिखेंगे? 3.5। अब AC की इधर लाइन से क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हट क्या हो जाएगा? AB माइनस AC इज इक्वल टू, आ गया हमारा। हाँ? अब इसमें आइए, इसमें किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमको? इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका ड्रॉ करना है? QR का कि DR का? DR का। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DR। इसको भी क्या करो बच्चों? डॉटेड लाइन से जहां पर ये कटेगा वो क्या हो जाएगा हमारा? P हो जाएगा। और इस P से R को ज्वाइन कर दो। इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा हुआ हमारा? PDR। ट्रायंगल PDR इज आइसोसेलेस। तो PD इज इक्वल टू PD is equal to PR। PD is equal to PR। हो गया? अब PD कितना हो जाएगा हमारा? PQ प्लस PQ प्लस PQ। इस PD की जगह क्या लिखेंगे? PR। PQ प्लस QD कितना है हमारा? 2 है, यानी कि PR माइनस PQ is equal to, ये नहीं करना था हमको, PR माइनस PQ इज इक्वल टू। आगे समझ बच्चों? तो ये 4 कंस्ट्रक्शंस में से दिस इज श्योर शॉट दैट वन क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जामिनेशन। सो प्लीज प्रैक्टिस इट एटलीस्ट 5 टाइम्स ईच क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए, टच एंड मूव। एक बार हमका अपना कंपास उठाया, पेंसिल उठाया और फाइनल टच देकर ही करोगे। God bless you.